Morning, children. Let's continue from the last paragraph of page number 75. These shaggy monsters, blacker than the darkest night, usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaws. So, children, we have read that when the writer and his friend, the driver, they were passing, they found very big monster like dogs. So these shaggy means untidy, or those who have very long and dirty hairs, bushy hairs. So those dogs, they have very bushy and very long hairs, and they are very dark in color, darker than the darkest night, means एकदम अंधेरी रात से भी गहरे काले. And they were generally wore red collars, and they bark very furiously with massive jaws. Massive means very huge और very sharp जा होते हैं दांत. तो बड़े भयंकर बड़े बड़े दांत दिखाते हुए ये जो डॉग्स थे, जो ये नोमैड्स अपने साथ रखते थे अपने कैटल को वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए, वो जब भी किसी ऐसी गाड़ी को आते हुए देखते थे तो वो बहुत ज़ोर से भौंकते थे. एंड दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आर व्हीकल. दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ द व्हीकल, शूटिंग स्ट्रेट इन टू आर पाथ, causing Saturn to brake and swerve, and they just came running towards the car without any fear. And because of that, Saturn had to apply brakes to his car and swerve. Swerve means to turn direction suddenly. So in order to avoid any accident, or in order to avoid the straight hit with the dogs, these dogs, they are not afraid of, they just come straight like a bullet from a gun into the car. So Saturn had to stop down the car and he has to change his direction. Next page now. The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen us off the property. And these dogs, they will run along with the car, or they chase the car for near about 100 meters. Or when they feel that they will also, before easing means they stop chasing when they found that now the car is away from their region. ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स कि जो उनका एक एरिया था पर्टिकुलर, उस एरिया से जब कार बाहर निकल जाती थी, देन दे स्टॉप चेजिंग द कार. It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. So, अब ये समझना मुश्किल नहीं था कि क्यों ऐसे भयानक, ferocious means so dangerous, Tibetan mastiffs, they became popular in China's imperial courts, means we can say in China's royal courts, or in China's kingdom. These ferocious dogs, they were famous as hunting dogs, and they were brought along the Silk Road in ancient times, or these dogs are kept at the loyal courts as a tribute from Tibet. So तिब्बत में ये पाए जाते थे, और तिब्बत से जब ये ट्रेड होता था सिल्क का, उसके साथ साथ ही इन डॉग्स को भी रॉयल किंगडम में लाया जाता था. एंड दे वर kept there as hunting dogs because they were so strong, they were so ferocious. That's why they were given as a gift, they were taken as a tribute from Tibet. By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. अब जैसे जैसे वो they were passing, now they come to see snow-capped means snow-covered mountains. Gathering on the horizon means दूर कहीं, जहाँ horizon is the place where you can say where it seems as if the earth and the sky, they are meeting. So दूर कहीं पर they can see now the mountains which were covered with snow. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice, brilliant white and glinting in the sunshine. Now they entered a valley where the river, that was a little bit elaborate, एक चौड़ी सी नदी थी, and that was totally filled with ice. And the ice was bright. It was pure white in color. Glinting means glimmering in the sunshine. और जब सूरज की किरणें उस बर्फ़ पर, वो जो नदी थी जो पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई थी, मीन्स बर्फ़ से जमी हुई थी, वी कैन से, उसके ऊपर जब when the sun rays were falling on it, the ice or the snow, it was shining brightly. The trail hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually
gained height and the valley sides closed in. कह रहा है और द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, हग्ड मीन्स टच्ड, और वो जो एक धुआं सा था दैट वॉज टचिंग इट्स बैंक, उस नदी के किनारे को वो टच कर रहा था. ट्विस्टिंग विद द मियंडर्स, मियंडर्स मीन्स टर्न्स एंड ट्विस्ट ऑफ द रिवर, यानी कि जैसे नदी का जो रूट होता है टेढ़ा मेढ़ा सा, जैसे एक सांप चलता है ना क्रॉल करके, इस तरह से जो नदी का जो रूट था दैट वाज फ्रॉम इट्स बैंक, वो किनारे किनारे से पूरी तरह से जो है इट वॉज हग्ड, दैट आइस जो नदी के किनारे किनारे पे वो पूरी जो है बर्फ़ जो से पूरी तरह से ढकी हुई थी. विद द मियंडर्स एज वी ग्रेजुअली गेन, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि एक साइड पे जैसे माउंटेन्स थी और साइड में उसके नदी बह रही थी, और जो नदी की साइड्स थी जो ट्विस्ट एंड टर्न करती हुई साइड्स थी वो जो थी वो पूरी तरह से उस बर्फ़ से ढकी हुई थी. And it was all covered with the snow. The turns became sharper and the ride bumpier. और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे और जो टर्न्स आ रही थी वो धीरे धीरे शार्प होती जा रही थी. एंड द राइड बम्पियर, और मतलब जो वो जो उनकी ट्रैवल थी उसमें बार बार उन्हें झटके लग रहे थे. दे वर बाउंसिंग सैतन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कॉन्टिन्यू टू क्लाइंब, और सैतन ने अपनी कार को अब थर्ड गियर में कर लिया था एज दे कॉन्टिन्यूड द टू क्लाइंब, मतलब जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे पहाड़ी पर धीरे धीरे सैटर्न ने अपनी कार को भी तीसरे गियर पे ले आए थे. द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लॉप्स दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स daubed with patches of bright orange lichen. नाउ अब जो ट्रैक जो है वो आइसी रिवर से दूर होकर के वो शार्प शेप्स स्टीपर स्लॉप्स मीन्स शार्पर स्लॉप्स के ऊपर जा रहा था. एंड दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स, और अब धीरे धीरे जो है इट वाज हैविंग और इट वाज स्प्रेडिंग विद अस विद द, मतलब नाउ देर वर बिग रॉक्स ऑल्सो देर. अर्लियर इट वॉज कवर्ड विद स्नो बट नाउ आइस अब कम हो गई थी, और उस रास्ते पर जब वो ऊपर चढ़ाई की तरफ चढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे हैवी हैवी रॉक्स आने लगी थी. एंड दोज रॉक्स वर डॉब्ड विद पैचेस मीन्स दे वर कवर्ड विद यू कैन से कलर्ड पैचेस के साथ ऑफ ब्राइट ऑरेंज लाइकन, एक ऑरेंज से कलर का एक पौधा वहाँ पे उगा हुआ था. एंड इट वाज कुछ स्टिकी सा मटेरियल था वो उस पौधे के ऊपर. लाइकन ऑरेंज कलर का स्लोली ग्रोइंग प्लांट है ये एक ऑरेंज कलर का. उन रॉक्स के ऊपर जो है वो छोटा सा पौधा हर जगह पे फैला हुआ था. एंड बीनीथ द रॉक्स, और उन सब रॉक्स के नीचे हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, और उन पहाड़ियों के नीचे हंक्स मीन्स हैंगिंग, स्नो क्लंग होते हैं स्नोफ्लेक्स, तो उन पहाड़ियों के नीचे जो है बर्फ़ लटक रही थी परमानेंटली, जैसे उसे स्टिक हो गई थी बड़ी टाइटली. उन रॉक्स को उन्होंने पकड़ा हुआ था. रॉक्स के पीसीज के नीचे जो है ह्यूज यू कैन से पीसीज ऑफ स्नो, इट वाज स्नो फ्लेक्स वर हैंगिंग देयर ऑन द परमानेंट शेड्स. आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, और जैसे जैसे चढ़ाई कर रहे थे यू नो द एयर प्रेशर इट बिकम्स लेस. ऊपर जब हम चढ़ाई करते हैं तो वो एयर प्रेशर जो है कम होता जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ द राइटर ही वॉज फीलिंग अ लिटिल बिट प्रेशर इन हिज ईयर्स, कानों में उन्हें एक प्रेशर सा फील होने लगा. हेल्ड माई नोज स्नॉटेड एंड क्लियर्ड दैम, तो उन्होंने व्हाट ही डिड इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट एयर प्रेशर ही जस्ट अपनी नाक को उन्होंने बंद किया. देन ही लीव इट, एक जोर से उन्होंने सांस ली और अपने कानों को साफ करने की कोशिश की, नाक बंद करके और कानों से उन्होंने हवा को बाहर निकालने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उनके कान ब्लॉक हो गए हैं. वी स्ट्रगल राउंड अनदर टाइट बेंड एंड सैटन स्टॉप. फिर अगेन एक बड़े ही नैरो बेंड पे एक टर्न, बड़ा नैरो सा टर्न आया और सैतन वहाँ पर रुक गया. ही हैड ओपनड हिज He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. Snow, said Daniel, as he too excited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. और
जब उन्होंने एक यू टर्न लिया और कार रोक दी सैतन ने, उसने अपना दरवाज़ा खोला और वो अपनी सीट से बाहर निकला है। और तभी राइटर ने भी रियलाइज़ कर दिया था कि एक्चुअल में है क्या। एंड देयर वाज स्नो, एक बहुत बहुत ज़्यादा सी स्नो उनके सामने थी। सेड डैनियल एज ही टू एक्साइटेड द व्हीकल, ही ऑल्सो एग्जिटेड द व्हीकल, सॉरी। डैनियल भी, ही वॉज द गाइड, यू नो, सो ही ऑल्सो केम आउट ऑफ द व्हीकल लेटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर हैज ही डिड सो। और एक बाहर निकल कर उन्हें बड़ी लंबी सी सांस ली उन्होंने ठंडी हवा की। एंड देन द ऑथर रियलाइज कि हाँ, अब सामने जो है बहुत ज़्यादा उन्हें बर्फ़ दिखाई दे रही थी। अ स्वेथ ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस, और उनके सामने अ लॉन्ग स्ट्रिप और अ लॉन्ग एरिया, स्वेथ इज़ अ लॉन्ग स्ट्रिप, एक बड़ी लंबी सी, वाइट स्टफ इज़ द स्नो, सो बड़ी दूर तक जो है उनके सामने एक पूरा ट्रैक बना हुआ था। किस चीज़ का? स्नो का। द होल एरिया वॉज कवर्ड विथ स्नो स्ट्रेचिंग फ्रॉम मे बी 15 meters बिफोर इट petered out and the dirt trail reappeared। लगभग 15 मीटर तक जो है वो दिखाई दे रहा था उन्हें, जितनी दूर तक वो देख पा रहे थे। और एंड बिफोर इट petered out मीन्स disappeared एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, मतलब कि लगभग 15 मीटर तक जो है एक उन्हें बहुत दूर तक एक वाइट स्नो स्टफ स्नो दिखाई दी जिसने पूरे एरिया को कवर किया हुआ था। और उसके बाद वहाँ पर जो है डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, और डर्ट ट्रेल मीन्स जो मिट्टी का एक गुबार सा उठता है, वो फिर से जो है वहाँ पर उसके बाद रीअपियर हो रहा था उस रास्ते के ऊपर। द स्नो कॉन्टिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, रोड के दोनों तरफ जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ था पूरा रास्ता। स्मूदिंग स्मूदिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड, और उसकी वजह से जो एक सडन अप स्लोप जो ऊपर की तरफ वो चढ़ रहे थे, उसको एक जो उसका किनारा था, यू कैन से ऊपर चढ़ते हुए जो किनारा था उसको उसने बड़ा स्मूथ बना दिया बिकॉज द स्नो वाज देयर। तो सब तरफ से वो स्नो से कवर होने की वजह से वो पूरा रास्ता बड़ा स्मूथ हो गया था। एंड दैट वाज नॉट गुड फॉर देम बिकॉज क्योंकि अब फ्रिक्शन कम हो गया था और इस वजह से देर आर मैनी चांसेज ऑफ द स्लिपिंग ऑफ द कार, सो दैट वाज नॉट गुड। द बैंक वाज टू स्टीप फॉर अ व्हीकल टू स्केल, स्केल मीन्स टू मूव अपवर्ड्स और टू क्लाइंब। और अब वो जो किनारा था वो एकदम से स्ट्रेट था, इट वॉज टू स्टीप, और उनके व्हीकल के लिए ऊपर चढ़ना दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। सो देर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच, और उसको स्नो पैच जितनी दूरी तक फैला तो उसको कवर अप करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो उन्हें उसी एरिया को उसी पर से चढ़ के उन्हें जाना था। आई जॉइन डेनियल आई सेट एंड स्टॉप्ड ऑन टू द एनक्रस्टेड स्नो एंड began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was। अब राइटर भी कार से बाहर निकलाए थे और वे जॉन डेनियल के साथ खड़े थे, और सैतन जो है ही स्टेप डाउन टू द एनक्रस्टेड, एनक्रस्टेड मीन्स जमी हुई, जो जमी हुई बर्फ़ थी वहाँ पे, सैतन उसके ऊपर बार बार अपने पाँव रख रख के देख रहे थे। एंड बिगैन टू स्लीदर, स्लीदर मीन्स टू स्मूदन द सरफेस, उन्होंने उस पूरे सरफेस को जो कि वहाँ पे पूरी बर्फ़ फैली हुई थी, ही ट्राइड टू मूव स्मूथली ओवर द सरफेस, उसके ऊपर उन्होंने चलने की कोशिश की। एंड स्लाइड फॉरवर्ड, और आगे की तरफ वो चले। स्टैम्पिंग हिज फूट फ्रॉम, और जगह जगह वो अपने पाँव से उसको देखते जा रहे थे, उसको फील कर रहे थे कि टू अ सर्टेन हाउ स्टडी इट वाज, कि वो कितनी स्टिफ है, ताकि वो अपनी गाड़ी को आगे ले जा पाएँ। ये चेक कर रहे थे बार बार जगह जगह अपने पाँव के साथ कि वो वहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग है, स्टडी मीन्स कितनी सख्त है वो वहाँ पे। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल। और राइटर ने जब अपनी उस टाइम घड़ी को देखा एंड ही ऑब्जर्व्ड कि वो सी लेवल से लगभग 5210 मीटर ऊपर थे। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी बट द डेंजर वाजंट इट्स डेप्थ, डेनियल सेड, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर। अब जो स्नो थी वो बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन खतरा क्या था, वह द डेंजर वाज नॉट इट्स डेप्थ, उसकी गहराई खतरा नहीं थी, रादर सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर, बल्कि जो आइसी टॉप जो लेयर थी, सबसे ऊपर जो टॉप थी, वो खतरा था। इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, कहता है कि अगर हम इसके ऊपर स्लिप कर गए, क्योंकि कार बहुत जो बर्फ़ से ढकी हुई वो जो रास्ता था वो बहुत स्मूथ था और फ्रिक्शन बहुत कम था वहाँ पे, और कार के स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो वट ही सेड, डेनियल सेड, कि अगर हमने स्लिप किया तो हमारी कान जो है वो
पलट सकती है, उनकी कार पलट सकती थी. ही सजेस्टेड एज वी सॉ सैतन ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट एंड फ्लिंच दैम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस. और उन्होंने देखा कि सातन क्या कर रहा था, वो अपने हाथ में मिट्टी साइड में, उस बर्फ़ की दूसरी साइड जो मिट्टी पड़ी थी, मिट्टी उठा उठा के वो उस बर्फ़ के ऊपर फैला रहा था, जो फ्रोजन सरफेस था उसके ऊपर. ही वॉज throwing or he was spreading dirt over that frozen surface. We both pitched in, and when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Sathan's load. कह रहा है कि हम दोनों ने भी वी जस्ट वो कार के बाहर ही रहे. उन्होंने सातन की हेल्प की वो डर्ट को उस पूरी उसके ऊपर स्प्रे करने में. एंड जब उस पूरी स्नो के ऊपर वो मिट्टी फैल गई, देन डेनियल एंड द राइटर दे स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल. वो कार के बाहर ही रहे ताकि गाड़ी का बोझ कम हो जाए और सैतन के लिए उस अपनी कार को वहाँ से निकालना ईजी हो जाए. ही बैक्ड अप एंड डाउन, अप एंड ड्रॉप टूवर्ड्स द डर्टी स्नो. पानी चाहिए मामा जी को. He backed up and drove forward towards the dirty snow, eased the car onto its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. उन्होंने कार को एक बार बैक किया, फिर वो जो स्नो जिसके ऊपर अब डर्ट बिछा दी थी, उन्होंने डस्ट डाल दी थी, रेत डाल दिया था, उसके पास उसके ऊपर वो चला कर लेके गए. एंड इट वॉज ईजी फॉर हिम टू क्रॉस दैट पाथ. एंड धीरे धीरे करके उन्होंने वो पूरा एरिया जो है, जो पूरी लेंथ थी, उसको कवर कर लिया. एंड वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल उसको नहीं हुई. 10 minutes later we stopped at another blockage. अभी इन्होंने 10 मिनट का ही सफ़र किया था कि जस्ट उसके बाद ही दोबारा उन्हें एक डिफ़िकल्टी फेस हुई. नॉट गुड सर. और सैतन ने कहा कि यह अच्छा नहीं है. सैतन अनाउंस्ड एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो. सैतन ने कहा कि ये अच्छा नहीं है. वो अगेन कार से बाहर निकला, उसने सर्वे किया उस सीन को और उसने डिसाइड किया कि इस बार हम जो है स्नो के बाहर से चक्कर लगा करके इसको एरिया को कवर करेंगे. द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स. इस बार जो उनकी चढ़ाई थी वह एकदम स्ट्रेट थी. एंड इट वॉज स्टडीड मीन्स इट वॉज फिक्सड विद मेजर रॉक्स. बड़े बड़े से रॉक्स थे, बड़े बड़े से पत्थर थे उस रास्ते पे. बट सम हाउ सातन नेगोशिएटेड दैम. लेकिन सातन ने ही जस्ट अवॉइडेड दैम. हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग मीन्स स्वेइंग, झूल रहा था फ्रॉम वन ऑब्स्टैकल टू द नेक्स्ट. लेकिन सम हाउ किसी तरह से सातन ने ही ट्राई टू ओवरकम दैम और उन रॉक्स के ऊपर से अपनी कार को उसने चलाया. और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जो कार थी वो उन व्हीकल्स पे एक रॉक से दूसरे रॉक पे क्लाइंब होते हुए जैसे उनके बीच में झूल रही है. और इस तरह से उसने अपनी एक के बाद एक हर्डल्स को क्रॉस किया. इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स. और ऐसा करते हुए एक टर्न जो था, दैट वॉज वेरी शार्प टर्न. हेयर पिन बैंड, यू मस्ट हैव सीन जूड़ा पिन्स, दे आर इन अ यू शेप. सो देर वॉज अ वेरी शार्प यू टर्न. और जब इतना शार्प यू टर्न था तो यू कांट सी कि इफ़ एनी व्हीकल इज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड. मतलब सामने से अगर कुछ आ रहा होता वो आपको दिखाई नहीं देता. तो इट वॉज वेरी डेंजरस. सो ही covered that a U-turn also, regaining the trail further up where the snow had not drifted. और उसने वो पूरा रास्ता इस तरह से कवर किया जहाँ पर दोबारा फिर से जो है ड्रिफ्टेड हेयर इज़ नैरो बैंड्स, वहाँ तक वो ले गया जहाँ पे फर्दर जो है स्नो अभी तक जहाँ नहीं पहुँची थी, उस ट्रेल पर, उस पूरे रास्ते पर वो पहुंच गया जहाँ पर मतलब कि वो, क्योंकि वो पूरा एरिया कवर था, उसने सोचा कि मैं दूसरे रास्ते से लेके जाऊंगा. तो वो जब पूरा उसने रास्ता जो कि पूरा रॉक से भरा हुआ था उन ऑब्स्टेकल्स को टर्न किया एंड फाइनली ही रीच द प्लेस वेयर द स्नो वाज नॉट देयर. I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. Again, the narrator checked his clock and it was the daytime. The sun was shining brightly. We crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. लगभग उन्होंने 5,400 मीटर्स कवर कर लिए थे. Now they were 5,400 meters above the sea level. And now again the atmospheric pressure was very low there and the narrator's head started aching. सिर दर्द होने लग गया उनका. I took gulps from my water bottle which is supposed to help a rapid ascent. Rapid ascent means a quick upward slope, मतलब एकदम सीधी स्ट्रेट चढ़ाई जब होती. तो नरेटर ने क्या किया
उसने अपनी वाटर बॉटल से बड़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी की घूंटें पी, क्योंकि उन्होंने ऐसा पढ़ा था कि जब ऐसे ऊंचाई पे आप चढ़ रहे हो तो आपको बड़ी बड़ी घूंट जो है पानी की पीनी चाहिए। ये आपको हेल्प करते हैं उस असेंट, जो आप एक सीधी चढ़ाई चढ़ रहे हो उसको चढ़ने में, जो सिर दर्द वगैरह होता है ये उसको अवॉइड करते हैं। वी फाइनली रीच द टॉप of the pass at 5,515 meters. It was marked by a large cairn of rocks festooned with white silk scarves and ragged प्रेयर फ्लैग्स। और फाइनली वो उस पास एक दर्रा होता है, मीन्स दो माउंटेन्स के बीच की जगह जो उनको आपस में जोड़ती है। तो फाइनली वो उस दर्रे की टॉप पे पहुंच गए। यू कैन से इट्स अ पाथ टू गो फ्रॉम वन माउंटेन टू अनदर। तो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे पहुंचने के लिए जो बीच का जो स्पेस था वो वहाँ पर पहुँच गए, जो कि लगभग 5,515 मीटर ऊंचा था। इट वॉज मार्क्ड बाय लार्ज कैर्न ऑफ रॉक्स। कैर्न मीन्स बिग पीसीज ऑफ रॉक्स, मतलब वहाँ पे जो है कुछ पीसीज ऑफ रॉक्स थे, कुछ पत्थर थे, और उन पे फेस्टून्ड मीन्स दे वर डेकोरेटेड और दे वर एडोन्ड विद वाइट सिल्क स्कार्व्स एंड रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स। मतलब लोग जैसे कोई मन्नत मांगते हैं तो मन्नत पूरी होने के बाद लोग वहाँ पे आए होंगे, उन्होंने वहाँ पे किसी ने कोई सिल्क का स्कार्फ चढ़ाया था, वो बांधे हुए थे, या कोई रैग्ड होता कोई पुराना वोर्न आउट सा कपड़ा, कुछ ऐसे प्रेयर फ्लैग्स वहाँ पे लगे हुए थे। वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द कैन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इज़ द ट्रेडिशन एंड सैतन चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल। और जैसा कि एक वहाँ पे एक रिचुअल था, एक ट्रेडिशन था कि जब आप उस जगह पे पहुंचते हो तो एक जैसे परिक्रमा करना, तो उन्होंने भी उस पूरे कायर्न का जो एक रॉक्स का जो वहाँ पे एक पूरा मतलब पाइल था, उसको उन्होंने उसका एक चक्कर काटा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि एक एज अ रिचुअल था वहाँ पे। और सैतन ने अपने वहाँ पे गाड़ी के टायर्स की हवा चेक की। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शली अनस्क्रूड द टॉप विच एमिटेड अ लाउड हिस। फिर वो एक पेट्रोल टैंक था वहाँ पे रुके एंड पार्शली अनस्क्रूड द टॉप मीन्स वो जो पेट्रोल भरने वाली जो थी उसका जो कवर था उसको पार्शली मीन्स उसने थोड़ा सा खोला एंड फ्रॉम देयर एमिटेड अ लाउड हिस, एक जोर से हिस की साउंड ऐसे आई उसमें से। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज अलोइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड। अब क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर थे और वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो था, तो ये एक साइंस का फिनोमिनन है कि बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर द फ्यूल उसका जो वॉल्यूम था पेट्रोल का वो बढ़ गया था, और उसकी वजह से ही जो है एक हिस की साउंड आई थी उसमें से। इट साउंडेड डेंजरस टू मी और मे बी सर सातन लाफ बट नो स्मोकिंग। और तो नरेटर ने कहा कि ये मुझे बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा है, जिस तरीके से इसमें से एकदम से साउंड ज़ोर से आ रही कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ये फट जाए। देन सैतन ने भी कहा हाँ सर ऐसा हो सकता है। देन ही लाफ्ड एंड बट ही सेड नो बट नो स्मोकिंग। मतलब जिस तरह से वो एक हिस की साउंड आई थी और जो एक धुआं सा निकला था, उसके लिए सैतन ने कहा कि लेकिन स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड है। माई हेडेक सून क्लियर्ड as we careered down to the other side of the pass. Or the narrator's head was now okay, it was not paining, and as they moved, careered down means they moved swiftly without control, यानी कि क्योंकि अब वो पास के दूसरी तरफ जा रहे थे, अब निचाई की तरफ जा रहे थे, तो जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम निचाई ढलान पे जाते हैं तो हम अनकंट्रोल हो जाते हैं। तो उनकी कार भी जो है ऐसे ही थोड़ी सी अनकंट्रोल वे में जा रही थी। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप फॉर लंच। और लगभग जब वो रुके तो लगभग दिन के 2 बजे हुए थे एंड इट वॉज द टाइम फॉर देयर लंच। वी एट हॉट नूडल्स इन साइड अ लॉन्ग कैनवास टेंट, पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक। दे स्टॉप देयर एट अ टेंट, एक कैनवास का टेंट था वहाँ पे, एंड दैट वाज इन मेड इन बिटवीन अ ड्राई सॉल्ट लेक। एक सूखी लेक थी, मतलब पहले कभी वहाँ पे समुद्र या कोई वो हुआ होगा, कोई रिवर थी जो पूरी तरह सूख चुकी थी और उसमें बहुत सारा नमक था, नमक की एक लेक सूखी हुई, उसके साइड में एक टेंट बनाया गया था। वो वहाँ पर रुके, उन्होंने वहाँ पे नूडल्स खाए एंड द प्लेट्यू इज़ पोक मार्क्ड विद साल्ट फ्लैट्स एंड brackish lakes, vestiges of the Tethys Ocean which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward। तो यहाँ पे वो थ्योरी का जिक्र किया गया है, जब टेथिस सी के बारे में आपने सुना था कि अर्लियर कि एक टेथिस सी होता था, और क्योंकि वो जो हमारे टिटॉनिक मूवमेंट्स थी अर्थ के अंदर जो होती थी, उनकी वजह से
वो जो लैंडस्लाइड थी वो पास पास आती गई, और जो टैथिस सी था वो कहीं ऊपर की तरफ चला गया, आसमान की तरफ, और जो अर्थ के जो नीचे के जो पार्ट्स थे वो जुड़ गए और वो सी कहीं ऊपर की तरफ आ गया। तो नाउ व्हाट ही सेइंग कि जो जो वैली थी दैट इज़ पोक मार्क्ड, मीन्स दैट इज़ फिल्ड विद साल्ट फ्लैट्स, क्योंकि वहाँ पे पहले कभी समुद्र हुआ होगा तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सॉल्ट के फ्लैट बने हुए थे। एंड ब्रैकिश लेक्स मीन्स सॉल्टी लेक्स, बहुत सारी साल्ट की लेक्स थी। वेस्टेजेस मीन्स ऑफ द टैथिस, वेस्टेजेस मीन्स द रिमेनिंग्स और द रूइंस, जैसे वैसे तो वेस्टेजेस का मतलब था खंडर वगैरह, मतलब कोई चीज़ जो बहुत पहले और जिसके अब सिर्फ कुछ अवशेष बच गए हों। तो वहाँ पे उस टैथिस सी के सिर्फ कुछ रिमेन्स थे वहाँ पे, विच बॉर्डर्ड द टिबेटन बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल। तो वो जो कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुई और जिनकी वजह से जो टैथिस ही था वो अपवर्ड स्काई की तरफ कहीं चला गया था, तो वो उस समय वहाँ पे होता था। इट वॉज एट द बॉर्डर ऑफ द टिबेट। This one was a hive of activity, men with pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt encrusted roofs. और ये जो था, दिस वॉज वन अ हाइव एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, ग्रुप एक्टिविटी चल रही थी, जो सॉल्ट को मतलब जो सॉल्ट के वहाँ जो फ्लैट्स थे और जो इतना सारा साल्ट, सूखा हुआ साल्ट पड़ा था, उन सबको इकट्ठा करने के लिए। तो बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पे थे जिनके पास जो अपने शॉवेल्स और एक्सिस वगैरह लेके काम कर रहे थे, जिन्होंने लंबे लंबे शीप स्किन के कोट पहन रहे हुए थे। एंड दे वर ऑल कवर्ड विद बूट्स ऑल्सो, पैरों में उन्होंने जो है सॉल्ट एनक्रस्टेड बूट्स, मीन्स उनके पाँव भी पूरे जो है, जो उन्होंने लॉन्ग लॉन्ग बूट्स पहन रखे थे वो सब भी सॉल्ट से कवर हो गए थे। ऑल वोर सन ग्लासेज अगेंस्ट द ग्लेयर एज अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt, and they all were wearing sunglasses also। उन सब ने धूप के चश्मे भी लगाए हुए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्ट था वाइट कलर का, और उसके ऊपर जब वो पड़ रही थी, सनशाइन पड़ रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था और आंखें चुंधिया रहा था उनकी। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट they all were wearing sunglasses, because otherwise it would be difficult for them to do their work. So they all were wearing sunglasses, and then they saw that a stream of blue trucks, blue color के बहुत सारे ट्रक्स की एक लंबी सी लाइन आ गई थी वहाँ पे, which was blindingly white lake laden with piles of salt। और वो ट्रक्स वहाँ पे क्यों आए थे? दे वर ऑल कैरिंग दोज हुज पाइल्स ऑफ साल्ट, मतलब जो वो वर्कर्स जो उसको साल्ट को खोदने का काम कर रहे थे, तो वो ट्रक्स उस साल्ट को भर भर के लाद करके लेके जाने का काम कर रहे थे। तो बहुत सारी एक लंबी सी लाइन जो है ब्लू कलर के ट्रक्स की आ गई थी, जो उन सॉल्ट्स को भर करके कैरी करके लेकर जाते हैं। दे वर लेडन विद, मीन्स उनमें भरे हुए थे वो ट्रक्स उन सारे सॉल्ट के साथ। By late afternoon, we had reached the small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir। और लेट आफ्टरनून नियर अबाउट 3 to 4 o'clock, वो एक वहाँ पे जो छोटा सा टाउन था होर जिसका नाम था, दे हैड रीच देयर एंड इट वाज ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, जो उन्हें सीधा लेके जाता था ओल्ड ट्रेड रूट पे, दैट वाज द सिल्क रोड फ्रॉम लासा टू कश्मीर, जो लासा से कश्मीर तक। लासा इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तिब्बत। सो तो दे हैड रीच दैट स्मॉल टाउन ऑफ होर एंड दैट फॉलोड टू द सिल्क रूट विच runs from Lhasa to Kashmir. Daniel, who was returning to Lhasa, और Daniel जिसे लासा तक ही जाना था, found a ride in a truck. So Satan and I bade him farewell outside a tire repair shop। कह रहा कि डेनियल जिसे हमारे साथ लासा तक ही आना था, जिसे लासा जाना था, वहाँ से उसे एक ट्रक में एक उसे वो मिल गई थी, लिफ्ट मिल गई थी। सो वो उस ट्रक में चढ़ गया एंड सैतन ने और मैंने उसे गुड बाय किया। एंड आउटसाइड अ टायर, मतलब एक टायर रिपेयर की शॉप के बाहर, क्योंकि अब उसने देखा था वहाँ, उसने टायर्स अपने चेक किए थे, तो उनके टायर्स में ही फाउंड पंचर्स ऑल्सो। सो ही वॉज repairing those, getting repaired those tires. We had suffered 2 punctures in the quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Saturn was eager to have them fixed since they left him with no spares. Actually, जब वो साल्ट लेक को कवर कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी
के टायर में 2 पंचर हो गए थे, लगातार 2 पंचर हो गए थे, और सातन अब उनको रिपेयर करवाना चाह रहा था क्योंकि अब उसके पास कोई एक्स्ट्रा टायर नहीं था. Besides the second tire he had changed had been replaced by one that was as smooth as my ballad head. कह रहा है कि बल्कि जो सेकंड टायर उन्होंने चेंज किया था वो भी ऑलरेडी मतलब बहुत worn आउट था, वो बहुत पुराना हो चुका था, वो काफ़ी यूज़ था, वो मतलब बिल्कुल फ्लैट हो चुका था, बिल्कुल प्लेन हो चुका था, जैसे कि मेरा बैलेड इज़ अ पर्सन हु हैज़ नो हेयर, गंजा सिर जैसे होता है ना. तो कह रहा कि वो टायर भी ऐसे बिल्कुल प्लेन हो चुका था जैसे कि मेरा गंजा सिर था. Children, that's all for today. I hope it is clear to you. Rest we will do in the next class.